Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I'm here to discuss along with you the most important article, and the article is expression for force acting on a moving charge particle in a magnetic field. This article I have taken from Unit 3, Magnetic Field Due to Current, Class 12th. This is the most important article. In this article, we will discuss what is the force, how much amount of force is acting on the charge particle, positive charge particle Q, which is moving in a uniform magnetic field with a velocity v. बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है. एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जाता है. सो आर्टिकल है हमारा कि कितना फोर्स एक चार्ज पार्टिकल Q के ऊपर लगेगा अगर वो चार्ज पार्टिकल Q एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर मूव कर रहा है एक वेलोसिटी v से. बट माय डियर स्टूडेंट्स, before proceeding to this article, I think first it is necessary for you to understand the concept of magnetic field. What is magnetic field? It is defined as the space around the conductor carrying current or space around the magnet in which its magnetic effect can be felt. मीन्स मैग्नेट के चारों ओर का वो स्पेस, वो रीजन, या फिर एक कंडक्टर जिसके अंदर करंट चल रहा है तो उसके चारों ओर का एक रीजन, एक स्पेस जहाँ पे मैग्नेटिक इंटरेक्शंस को फील किया जाए उस मैग्नेट की वजह से, दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड. तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड? सबसे पहले मैं डेफिनेशन को डिस्कस करूँगा. What is magnetic field? It is defined as the space around the magnet, or a conductor carrying current. It is defined as the space around the magnet or a conductor carrying current in which its magnetic effect कैन बी फेल्ट. मतलब मैग्नेट के चारों ओर का वो स्पेस या द स्पेस अराउंड ए कंडक्टर कैरिंग करंट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट, दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड. दोबारा सुने. इट इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट और ए conductor carrying current in which its magnetic effect can be felt. मीन्स मैग्नेट के चारों ओर का स्पेस, रीजन, या फिर एक कंडक्टर जिसके अंदर एक करंट आई चल रहा है तो उसके चारों ओर का वो रीजन, वो स्पेस जिसके अंदर हम उसकी वजह से मैग्नेटिक इंटरेक्शंस को या मैग्नेटिक इफेक्ट को हम फील कर पाए, दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड. इट इज डिनोटेड बाय V. It is denoted by B. It is a vector quantity.
it is a vector quantity. Now our article is expression for the force acting on a moving charge particle placed in a magnetic field. Suppose this is the three-dimensional space. A system consists of three mutually perpendicular axes. This is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. Suppose the magnetic field B is applied along OY axis and a charge particle Q is moving with a velocity say V along these directions. The angle between V and B is theta. Suppose. तो हमें आर्टिकल जो करना है वो क्या है हमारा आर्टिकल, द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल व्हेन मूव्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने मान लिया लेट अस कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल Q moving in a uniform magnetic field B acting along OY axis. मैंने मान लिया कि let us consider a positive charge particle Q moving in a uniform magnetic field B acting along OY axis with a velocity say V. मैंने क्या माना कि कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज कितना है Q, वो मूव करता है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में जो कि मैंने Y एक्सिस के अलोंग लगाई हुई है. Let the angle between V and B be theta. Let the angle between V and B be theta. मैंने मान लिया कि इस वेलोसिटी में this is the velocity of the charge particle और इस मैग्नेटिक फील्ड B में जो मेरा एंगल है दैट इज थीटा. अब क्या करेंगे, रिजोल्व V इंटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. मैं इस V को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहा हूं. फर्स्ट इज V cos theta that is acting along V cos theta that is acting along OY axis. V cos theta किस तरफ लग रहा है, मैंने मान लिया कि this is the V cos theta and this is V sin theta. Second, V sin theta that is acting along OX axis जो कि इसके क्या है, परपेंडिकुलर. मैंने मान लिया कि कोई भी एक चार्ज पार्टिकल Q है जो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर एंटर करता है जो कि OY एक्सिस के अलोंग लग रही है विद ए वेलोसिटी V, और जो V और B के बीच में एंगल था दैट इज थीटा. फिर मैंने क्या किया, V को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक किया. V cos थीटा दैट इज एक्टिंग अलोंग OY एक्सिस एंड V sin थीटा दैट इज एक्टिंग अलोंग OX एक्सिस. ये एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है
Experimentally, it was found that the force acting on a charged particle having charge q, which is moving with a velocity v in a uniform magnetic field, depends upon the following factors. So experimentally it was found that the force acting on the charged particle moving in a uniform magnetic field इज किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है? फर्स्ट फैक्टर इज डिपेंड ऑन फर्स्ट फैक्टर किस फैक्टर के ऊपर? फर्स्ट, द चार्ज ऑन द पार्टिकल, चार्ज ऑन द मूविंग पार्टिकल, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करती है. एंड फर्स्ट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द charge of the moving particle. First, it is directly proportional to the charge of the moving particle. Means F is directly proportional to Q. This is one. तो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी? F is directly proportional to Q. मीन्स जो फोर्स उसके ऊपर लग रहा है चार्ज पार्टिकल पे, वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा. सबसे पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? चार्ज ऑफ द मूविंग पार्टिकल. सेकेंड पॉइंट, और किस पे डिपेंड करेगा? सेकेंड पॉइंट, directly proportional to the strength of the magnetic field. और किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के. पहला चार्ज Q के ऊपर, दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तीसरा पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तीसरा पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द component of velocity acting perpendicular to the direction of magnetic field. और किस पे डिपेंड करेगा? वेलोसिटी कंपोनेंट. कौन सा? जो कि परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा, क्योंकि v sin थीटा ही वो कंपोनेंट है जो कि परपेंडिकुलर है किसके? टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. फ्रॉम द अबव डिस्कशंस, इट वॉज क्लियर दैट, क्या क्लियर हुआ हमें? कि जो फोर्स लग रहा है किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? Q के ऊपर. दैट इज Q, वेलोसिटी QV sin थीटा इंटू B. इट मीन्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QVB sin थीटा.
इट मीन्स एफ, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के, और k की वैल्यू क्या है, दैट इज 1। तो f कितना है आपके पास, क्यू वी बी साइन थीटा। तो f कितना हो गया आपके पास, क्यू वी क्रॉस बी, वेयर f is the Lorentz force, magnetic Lorentz force। F is the magnetic Lorentz force। तो कितना फोर्स लगा चार्ज पार्टिकल पे, क्यू वी बी साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, केसेस बनाएंगे। सबसे पहला केस, अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल कर मूव कर रहा है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, केसेस बनाएंगे। सबसे पहले केस नंबर 1, इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, फर्स्ट केस, इफ द चार्ज पार्टिकल is moving parallel to the direction of magnetic field। अगर मैं ये मान के चलूं कि जो मेरा चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा है, मींस अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और चार्ज पार्टिकल भी इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो एंगल इसके बीच में कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो F कितना होगा, दैट इज क्यू वी बी साइन ऑफ 0 डिग्री। तो F इज 0। इट मीन्स नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। इट मीन्स नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन दी चार्ज पार्टिकल। पहला केस, अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल मूव कर रहा है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। सेकेंड केस, इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, if the charge particle is moving opposite to the direction of magnetic field। अगर मैं ये मान के चलूं कि जो चार्ज पार्टिकल है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो चेक करते हैं फोर्स क्या लगेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो थीटा क्या बनेगा, दैट इज 180 डिग्री। तो चेक करें फोर्स, दैट इज क्यू वी बी साइन ऑफ 180 डिग्री। तो F कितना हुआ, 0। क्यों, क्योंकि साइन ऑफ 180, साइन ऑफ 0 कितना होता है, 0। इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ, नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन दी चार्ज पार्टिकल मूविंग अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं ये मान के चलूं कि चार्ज पार्टिकल मेरा अपोजिट मूव कर रहा है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तीसरा केस, इफ द चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट। थर्ड केस, if the charge particle is at rest। अगर मैं ये मान के चलूं
कि चार्ज पार्टिकल मेरा रेस्ट पे है, दैट इज v इज 0। तो f कितना होगा, f कितना था, q v b साइन थीटा। तो f कितना हो जाएगा, q v कितना है 0 b साइन थीटा। इट मीन्स f इज 0। इट मीन्स नो फोर्स, it means no force is acting on the charge particle which is at rest position। अब बनाएंगे फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या है, इफ ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्थ केस, इफ ए चार्ज पार्टिकल is moving perpendicular to the direction of magnetic field। अगर मैं ये मान के चलूं कि चार्ज पार्टिकल मेरा कैसे मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड and a positive charge particle q is moving in this sense, the angle is 90 degree, then in this case f is qvb sin of 90 degree। और आप सभी जानते हैं sin 90 कितना होता है, मैक्सिमम, दैट इज 1। तो इसका मतलब उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगा, हेंस it means it experience a maximum force। तो मैंने कौन कौन से केसेस आपको बताए। पहला केस, अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल मूव कर रहा है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा क्या है 0 डिग्री, कोई भी फोर्स उसके ऊपर नहीं लगेगा। सेकेंड केस, अगर चार्ज पार्टिकल अपोजिट मूव कर रहा है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थीटा क्या है 180 डिग्री, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि थीटा 180 में साइन 180 कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री। तीसरा केस, अगर चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट पे है तो कितना फोर्स लगेगा 0, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या है 0। फोर्थ केस, इफ अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में है और Q हमारा इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स कितना लगेगा, दैट इज मैक्सिमम। एक डेफिनेशन है इसके अंदर हमारी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। F कितना था हमारे पास, Q V B साइन थीटा। अगर मैं ये मान के चल लूँ, इफ V इज 1 मीटर पर सेकेंड, Q इज 1 कूलम एंड थीटा इज 90 डिग्री, मीन्स इट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन F इज, चेक करें, Q इज 1, V इज 1, B इंटू साइन 90, साइन 90 इज अगेन 1, इट मीन्स F इज इक्वल टू B। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आई या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आई एट ए पॉइंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू दी, किसके बराबर आई, the value of magnetic field induction or magnetic field density at a point in the magnetic field is defined as the force experienced by the
unit positive charge particle moving with a unit velocity perpendicular to the direction of magnetic field. इसका मतलब the magnetic field induction or magnetic flux density at a point in a magnetic field is defined as the force experienced by the unit positive charge particle moving with a unit velocity perpendicular to the direction of magnetic field at that point. तो क्या बनी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन? अगर हम Q की वैल्यू को 1 कूलम रख दें, वेलोसिटी का 1 मीटर पर सेकेंड रख दें और थीटा को 90 डिग्री रख दें, तो F की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? B के बराबर. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट ए पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द unit positive charge particle moving with a unit velocity perpendicular to the direction of magnetic field at that point. So this is the discussions about the magnetic field or the force experienced by the charge particle moving in a uniform magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं. इट इज टेस्ला. द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला. कैपिटल टी से हम इसे डिनोट करते हैं. सो दिस इज द कंप्लीट डिस्कशंस अबाउट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो माय डियर स्टूडेंट्स, at last again I am saying, if you like my videos, like my efforts, then please don't be forget to like, share and subscribe it. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस अगर आपके कंसेप्ट को सोल्व करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, then प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें and share my videos maximum to your friends so that they can also take the advantage of this video and clear his or her concepts in a simplified ways. धन्यवाद.